امریکہ اور ایران تحمل سے کام لے، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتے ہیں۔ پاکستان مخلص ثالث اور سہولت کار کے طور پر کردار نبھاتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کو یقین دہانی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات، علاقائی کشیدگی کم کرنے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا، علاقائی امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو اہم قرار دیا۔ ایران معاہدے کے لیے منتیں کر رہا ہے لیکن اب ہم مذاکرات نہیں چاہتے۔ ایران ہم سے ملاقات کے لیے بے تاب ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ لبنانی صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی سخت بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے، کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ کہا حوثیوں کو بحر احمر بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کے باوجود مذاکرات جاری ہیں۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران پر حملے صدر ٹرمپ کے حکم تک جاری رہیں گے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بات چیت بھی جاری ہے۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی یا ابناء ہرمز میں حملوں اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے رد عمل میں کی جا رہی ہے۔ امریکا کے 10ویں روز بھی ایران پر حملے، چابہار، بندر عباس، سرخ، بوشہر اور کیشم سمیت 10 شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینکام کا کہنا ہے حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں F-15 طیارے اور میزائل دفاعی ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا بحرین میں ایمیزون کا ڈیٹا سینٹر، پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم اور ریڈار تباہ کر دیے۔ کویت کے السالم ایئر بیس پر MQ-9 ڈرون ہینگر اور امریکی فوج کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا۔ احمد الجابر ایئر بیس پر امریکی تنصیبات کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کر دی، سعودی عرب کی شدید مذمت۔ کہا حوثی ملیشیا نے یمن کو وسیع تر علاقائی تنازع میں گھسیٹ لیا، باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کے خلاف تمام حوثیوں کے اقدامات کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے حوثیوں کے اقدام کو سمندری قذافی قرار دیا۔ کہا اپنے جہازوں کے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے۔ قطر نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کی مذمت کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزاد جہاز رانی بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات 3 مرحلوں میں کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے 27 جولائی کو میرپور، 2 اگست کو مظفر آباد، 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوں گے۔ نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا تھا فوج تب آتی ہے جب حالات کنٹرول سے باہر ہوں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آزاد کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں۔ ARY نیوز سے گفتگو میں مصطفیٰ مغل نے بتایا سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر عام انتخابات فوج کی نگرانی میں کروائے جا رہے ہیں، مرحلہ وار نتائج ماحول پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ نواز شریف نے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر کر دی۔ مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ نون لیگ کامیاب ہوئی تو شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے وادی کا وزیر اعظم بنا دیں۔ کہا آزاد کشمیر کا بجٹ 10 گنا بڑھائیں گے، ایک ایک منصوبہ مکمل کر کے دکھائیں گے۔ چند دن میں 10 گرین بسیں مظفر آباد پہنچ جائیں گی۔ میرے بعد آنے والی حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف نعرے بازی کی اور لوگوں کو بھڑکایا۔ آپ نے ہم پر اعتماد کیا تو گزشتہ جو کام رہ گئے تھے اب ساری کسر نکال دیں گے۔ الیکشن کے بعد آزاد کشمیر کی قسمت چمک جائے گی۔ خواہش ہے مظفر آباد کا شہر لاہور اور اسلام آباد سے آگے نکل جائے۔
जिन के सूबे की सड़कें टूटी हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? जिनके अपने सूबे में वसाइल करप्शन की नजर हुए वो यहां वसाइल कैसे पहुंचाएंगे? मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब में नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, इल्जाम लगाने वालों से कहती हूं यहां हुकूमत तो आपकी है, जहां नून लीग की हुकूमत वहां के हालात देख लें और जहां नहीं वहां के हालात देख लें। पंजाब की तरह कश्मीर को भी तरक्की करता देखना चाहते हैं। पंजाब में सीसीडी ने इतनी मेहनत की कि अब जुराइम ना होने के बराबर हैं। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। जाली मैंडेट से इक्तदार पर काबिज जमात कश्मीरियों के हुकूक के अलंबरदार बनने की कोशिश कर रही है। मत भूलें, पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। पंजाब में मानसून के तगड़े स्पेल के बाद दरिया बिफर गए। चिन्योट के गांव मियांवाल में दरिया चनाब की मुंह जोर मौजें समंदर मस्जिद बहा ले गईं। दर्जनों मकानात मुनहदिम नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियां पहुंचा दी गईं। जलालपुर भटिया में जमीनी कटाव की वजह से किसानों की एकड़ों पर फैली फसल जेर आब आ गई। वजीराबाद में सनती इंतजामिया ने मकामी आबादी को फौरी घर खाली करने की हिदायत कर दी। 7 घंटे तक मुसलसल तूफानी बारिश से नारोवाल शहर डबो दिया। पोस्ट ऑफिस में घंटों तक पानी जमा रहा और इंतजामिया को मुंह चढ़ाता रहा। जसर के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर मकीनों को नकल मकानी की हिदायत। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, जेहलम में भी बारिश के पानी डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें जारी। पेशावर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मर्दान में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मानसून बारिशों के बायस वजीर आला पंजाब का तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के तमाम मुतासरा अजला में नकासी तेजी से मुकम्मल कर ली गई। मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वजीर आला ने 15 अजला में वासा को 12 इकसाम की मशीनरी फराहम कर दी। ये सूबे की तारीख का सबसे बड़ा और वासा का प्रोग्राम है। पंजाब भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेजी से काम जारी है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी की नींद उड़ा दी। दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज भी नौजवानों को हिला न सका। भारतीय नौजवान वजीर तालीम के इस्तीफे के बाद मोदी को हटाने पर भी तिल गए। दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में मोदी सरकार निकम्मी है के नारे बुलंद। तहरीक के शुरका पुलिस हसार तोड़कर असेंबली हॉल में दाखिल हो गए। भारतीय किसान भी मोदी मुखालिफ तहरीक में शामिल। पेपर लीक होने के खिलाफ लाखों तलबा सरापा एहतजाज। मोदी सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान राहुल गांधी के पैर में चोटें भी आईं। राहुल गांधी ने तलबा से इज़हार यकजहती के लिए अरकान पार्लियामेंट के साथ वजीर आजम हाउस के बाहर मुजाहिरा किया था। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर तालीम से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने कहा, भारत में इंसाफ नहीं, तलबा मुस्तकबिल खो रहे हैं, लेकिन वज़रा अपनी नशिस्तें छोड़ने पर तैयार नहीं। हुकूमत कोई जवाब दे रही है ना पार्लियामेंट में इस पर बहस कराना चाहती है। तवक्को है अब मेरे दफ्तर में किसी के हाथ में फाइल न हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने अमले को हिदायत कर दी। वजीर आजम ऑफिस में मसनूई जहानत पर मबनी जदीद ट्रैकिंग और फैसला साजी निजाम लगा दिया गया। वजीर आजम ने इस सिस्टम पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की और कहा कि आज के बाद वो अपने दफ्तर में रवायती फाइल निजाम नहीं देखेंगे। तमाम काम इसी मैकेनिज्म के जरिए होगा।
नौरीन न्याजी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना साहब के बयान का मामला भी छोड़ दें। उन्होंने वजाहत कर दी है, सबसे गुजारिश है कि फौज की कुर्बानियों और शहदा पर लबकुशाई न करें। जोश खिताबत में कुछ चीजें निकल जाती हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। दुश्मन को यही जवाब है कि दोबारा कोशिश की तो सख्त जवाब मिलेगा। सिफारत खानों को डाटा हैक करने वाले गिरोह के 12 हैकर्स लाहौर से गिरफ्तार। एनसीसीआईए पंजाब के डायरेक्टर अली वसीम ने बताया कि मुलजिमान सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ सिफारत खानों के डाटा हैक कर रहे थे। मुलजिमान ने सिफारत खानों के नंबर्स अपने नंबर्स पर डाइवर्ट कर रखे थे। मुख्तलिफ जुबानों के माहिर सिफारत खानों की जाली वेबसाइट्स भी बना रखी थी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शोहदा से मुतालिक बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान ने कहा मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ है। काउंसिल इसकी हिमायत नहीं करती। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और बाइस फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। जलालपुर कैनाल पर हमारे एतराज़ात हैं। सीसीआई में तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक दरख्वास्त दी हुई है। हर सूबा वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक पानी लेने का पाबंद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इरसा के तरीक़ाकार पर मुतादिद बार एतराज़ात उठाए। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी और मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का जायजा लेगी। टास्क फोर्स बनाकर सिंध का मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे। कहा मुल्क में गंदम की कमी नहीं, कुछ अफराद ने गंदम जखीरा कर रखी है। दरामद के बजाय जखीरा की गई गंदम मार्केट में लाने पर तवज्जो देना होगी। सोलर सिस्टम से 3.25 लाख खानदानों की तवानाई की जरूरियात पूरी करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए का सोलर सिस्टम फराहमी का मंसूबा इनकलाबी कदम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध का मकसद कम आमदनी वाले दूर दराज इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को सहूलत देना है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लेवी और नाजायज टैक्स का जंग से क्या ताल्लुक। जालिमाना टैक्स ना हो तो फी लीटर पेट्रोल 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। रोजाना अवाम दुश्मनी की जा रही है। पूरी कौम से झूठ बोलकर अवाम को लूटा जा रहा है। 7 अगस्त को पूरे मुल्क की सड़कों को बंद करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कहा यह इकदाम अमेरिकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मसावी सलूक के जवाब में किया गया। नई महसूलात का इतलाक शराब, हॉकी स्टिक्स और सीमेंट जैसी सनती मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये महसूलात 30 रोज बाद नाफिजुल अमल होंगी।